Hi friends, good afternoon. This is Dr. Sheetal Agarwal. I'm a senior consultant obstetrician gynecologist working with Apollo Group of Hospitals, Apollo Spectra Kailash Colony and with Rosewalk Hospital. During this lockdown period, we all are very tensed. We are going through lots of anxiety issues. We have so many queries. We don't know we don't want to go out and we don't know whom to approach. So we try to go through various online portals to see who can help us, who can answer our queries. So I thought I must come online and discuss a very simple but a very common topic with you all, that is polycystic ovaries. I know majority of my friends, my patients are suffering through this problem, that is polycystic ovarian disease. We also call polycystic ovaries or PCOD. So now let's start it. What exactly is polycystic ovaries? In polycystic ovaries, see, a woman has 2 ovaries and 1 uterus. Every month, an ovary releases an egg. In polycystic ovary, egg is released, but egg is formed in the ovary, but it is not released. So, small eggs get accumulated at the periphery of the ovaries, giving it a pearl neck appearance to the ovary, hence the name polycystic ovaries. So I'm going to burst certain myths associated with polycystic ovaries. One very common myth associated with polycystic ovaries is that polycystic ovary is seen only in obese women, or obesity leads to polycystic ovaries. Well, that is not the case. Polycystic ovary can happen in a woman who was lean and thin also, and at the same time a woman who is fat. Basically it is a hormonal imbalance. Polycystic ovaries में hormonal imbalance होता है. The body becomes resistant to insulin, so insulin levels बढ़ती जाती है. With the result, whatever we eat is not properly metabolized, it gets accumulated as fat. So a vicious cycle is formed. Obesity leads to polycystic ovaries lead to obesity. So a sort of vicious cycle is formed due to hormonal imbalance. It can be seen in both lean and thin, it can be seen in fat females. Second common myth which जो मेरे को बहुत सुनने में आता है कि male pattern distribution of hair in polycystic ovaries. That means there is upper lip, chin and side hair growth in a lady. Well, it is one of the symptoms of polycystic ovaries, but it is not seen in all the ladies. You can have male pattern distribution of hair, you can have an increase in their upper lip, chin. Female says that every week she has to go to a parlor to go for her threading or waxing. Even her lower abdomen hair growth is increased. So that is male pattern distribution of hair. Now what is the cause of it? As I have told you, polycystic ovaries are hormonal imbalance. There is increase in the male hormone testosterone. We have testosterone both free and total. In polycystic ovaries, both free and total levels of testosterone are raised. Not necessarily in all the ladies, but in some ladies it is raised, leading to male pattern distribution of hair. So that is one of the symptoms of polycystic ovaries, having male pattern distribution of hair. Third thing जिससे हमें polycystic ovaries का पता चलता है कि at the nape of the neck there becomes pigmentation. काफ़ी the nape of the neck becomes black, pigmented. Many a times lady has no symptoms, but when she comes to us and we look at her nape of neck, we come to a diagnosis. She may be having polycystic ovaries. We move in that direction. We get various tests done in that direction and we come to a diagnosis of polycystic ovaries. Then I also get lots of queries that polycystic ovaries leads to infertility. Yes. To a large extent, a woman who's obese, whose BMI is more than 30, she has polycystic ovaries wherein the ovaries are forming eggs but they are not releasing the eggs. एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो रहे हैं जिसमें अंडा ओवरी के अंदर बन रहा है पर वो एग ओवरी के बाहर नहीं निकल रहा. वी कॉल इट एनओव्यूलेटरी साइकिल एंड दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. So we have to in that case tell we
ask the patient what exactly she wants. Has she come to me for this, ki she wants to have children, or she just wants to get herself treated for polycystic ovaries and she is not interested in having children? Our treatment accordingly moves in that direction. Then why does a person has polycystic ovaries? उसको होती क्यों है? It is basically a lifestyle disorder. आई रिमेंबर व्हेन वी वर यंग, हम लोग 2 घंटे हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर भेजते थे, जाओ खेल कर आओ. हम लोग साइकिलिंग करते थे एंड वी रियली यूज टू मूव अराउंड, प्ले. वी नेवर यूज टू सिट at one place. Now everyone has a mobile, they have laptops, they are most of the time they are sitting in front of, they come from the school, they are busy in their tuitions, then when they have a free time they sit in front of their phones and laptops. They all have sedentary lifestyle, they have no physical activity. Majority of the times when you lead a sedentary lifestyle with very less of physical activity, your hormones take a topsy-turvy. As simple as that. Testosterone, the body starts becoming resistant to insulin. The body starts becoming resistant to insulin. More and more of insulin is secreted in the body. The male hormone testosterone levels start increasing. Female hormone estrone level starts decreasing, and all these changes leads to polycystic ovaries. So basically, it is a lifestyle disorder. You are having a sedentary lifestyle. आप sedentary lifestyle पे हो, and you are आप खाने पीने पे यू आर हैविंग ऑल दैट फास्ट फूड, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चिप्स, कोक्स, जूसेस, कैन जूसेस, ऑल दीज प्ले अ हैवक विद योर सिस्टम. बिलीव मी, वो जो हमारी नानी दादी बनाती थी स्नैक्स, दे वर मच बेटर देन व्हाट वी आर हैविंग टुडे. हम वो जो पैक्ड नमकीन्स एंड पैक्ड चिप्स एंड पैक्ड कोक्स एंड these burgers and pizza, they all are very unhealthy. They create havoc in our body, they cause hormonal imbalance in our body, and all this leads to polycystic ovaries to a large extent. So ladies, whether you have a young daughter or you yourself are a young teen, preteen, in your early 20s, in 30s, please be active. निकलो, घर से बाहर निकलो, बी एक्टिव, गो फॉर वॉक्स, गो हैव सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी इन योर लाइफ. कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए. या तो आप अपने वॉक करो, या आप अपना जिम ज्वाइन करो, समर्स में आप स्विमिंग करो. ऑफ कोर्स नॉट इन दिस कोविड टाइम्स, बट अदरवाइज एक टाइम तो 2-3 महीने 6 महीने बाद तो इट हैज़ टू गो दिस कोविड. बट यू शुड ऑल हैव सम फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी. आजकल जैसे आप कोरोना के टाइम पे घर पे हो, आप अपना योगा कर सकते हो घर पे, आप अपने कुछ कैलिस्थेनिक एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो घर पे. दिस इज़ अ टाइम यू शुड यूटिलाइज कि मेरे को अपना कुछ एक स्केड्यूल बनाना है, एक रूटीन बनानी है. मेरे को फास्ट फूड नहीं खाना है, मुझे घर का हेल्दी खाना खाना है, और मुझे 1-1.5 घंटा अपना वर्कआउट करना है, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट. See, nothing is difficult. Once you make up this mind, it is very easy. And believe me, 2 किलो भी, मेरे अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स का 2 किलो भी वेट लॉस होता है, उसके एनओव्यूलेटरी साइकिल्स के बदले ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है. See how important it is to be active, to be on your feet, and to have a healthy and nutritious life. So this was all about polycystic ovaries. Now I'm going to take the calls from the queries which I'm having from the my live viewers. I'm going to take all these queries. So one query is from my patient Subhadra. Subhadra she's a mother of 6-month-old, and she has delivered 6 months back. Her main query is that her periods are not regular, and most of the days she gets a little blood discharge. So what should she do? I would suggest, Subhadra, most likely you are breastfeeding the child, and once you are breastfeeding the child, the cycles are anovulatory. It has nothing to do with polycystic ovaries. Gradually, when you start weaning your child, आप breastfeed से काम करोगे, धीरे धीरे आपके cycles regular हो जाएंगे, and your bleeding will start coming on time. But remember one thing, once you are breastfeeding, these are generally an ovulatory cycle, but many a times erratic ovulation हो जाती है.
So when there is erratic ovulation and you have unprotected sex, the chances of conceiving is very high. So you please have to take that precaution up. Use some protection when you are having sex, even though you are breastfeeding your child. Many a times that erratic ovulation can make you pregnant. And regarding this, your periods will become regular once you start weaning your child. Okay, my next is from anonymous. She has not written her name. She is again a mother of 6 months old. इनका डिलीवरी 6 महीने पहले हुआ था. डिलीवरी के बाद इनका वेट 67 kgs था और अब 6 महीने बाद 70 kgs हो गया है. इनको PCOD का प्रॉब्लम है, तो वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? वेल, सिंस आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि सिजेरियन हुआ था, आई वुड थिंक 6 मंथ्स हो गए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ या सिजेरियन हुआ है. जैसा मैंने शुरू में बताया है, अगर 2 kg भी वेट लॉस होता है तो आपके PCOD के प्रॉब्लम 40 to 45% तक रिजॉल्व हो जाती है. मेरे ख्याल से यू शुड स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी नाउ, सिंस दैट 6 मंथ्स हो गए हैं. ब्रेस्ट फीडिंग यू शुड मस्ट डू. ऑल द लेडीज़ हु हैव डिलीवर्ड देयर चिल्ड्रन, प्लीज़ ट्राई टू स्टार्ट इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वन फॉर्म जिससे आपका वेट लूज होता है. सो कैंसिल हो जाएगा फिर से, वाईफाई से कनेक्टेड थे आप. Sorry guys, there was some internet connectivity issue, so I'm continuing from where I left. My another query is from Madhusmita Das. She is 38 weeks pregnant. इन्होंने लिखा है कि मैम मेरी 2 महीने कंप्लीट होके तीसरा चल रहा है. मेरे से एक गलती हो गई. मैंने अनवांटेड लास्ट 2 pills गुस्से में खा ली, बट नाउ आई वांट टू कंटिन्यू माय प्रेगनेंसी. ये मेरी फर्स्ट कंसीव है, कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा बेबी पर? अब आपने अगर अनवांटेड खा भी ली थी और आपके हिसाब से यू आर 38 वीक्स प्रेग्नेंट, तो कुछ हो भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं हम कर सकते. वी हैव टू डिलीवर द बेबी. एंड आई एम श्योर जब आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ये बताया होगा तो उसने आपके सारे टेस्ट कराए होंगे, डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, लेवल 1 स्कैन, लेवल 2 स्कैन, 32 वीकर स्कैन, 36 वीकर स्कैन. तो आई एम श्योर ये आपके सब हुए होंगे. सो एंड इन एनी केस ये दिस क्वेरी इज़ नॉट रिलेटेड टू माई टूडेज टॉपिक ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज. आई एम रियली सॉरी. सो मैं आपको यही कह सकती हूँ कि ऑल द बेस्ट. आपने अगर गुस्से में अनवांटेड ले ली थी, बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए था, बट नाउ जो हो गया सो हो गया. कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. माई नेक्स्ट कॉलर इज दिव्या साल्वी. शी इज़ अ मदर ऑफ 1 month old. वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस. शी हैड अ डिलीवरी 1 month बैक. इनका है कि डॉक्टर मेरे को PCOD का प्रॉब्लम थी, पर मैंने ट्रीटमेंट भी लिया था और मैंने शादी के 4 महीने बाद ही कंसीव कर लिया था, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. आपने कंसीव किया था 4 महीने बाद और PCOD में, विच इज़ समथिंग वेरी गुड. अब इन्होंने कहा था कि इन्होंने नॉर्मल कंसीव किया था. मेरा बेबी 2 months का है, तो क्या मुझे फिर से PCOD होने के चांस हैं? क्या मुझे फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा PCOD का? और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे PCOD की प्रॉब्लम फिर से हो रही है? नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वेरी गुड कि आपको पहले PCOD था, आपने ट्रीटमेंट लिया, आप ठीक हो गए, आप प्रेग्नेंट भी हो गए, आपकी डिलीवरी भी होगी. सी, PCOD कैन कम एट एंड. दिव्या, PCOD किसी भी स्टेज पे आ सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि आपको PCOD है या नहीं? आपके साइकिल इरेगुलर होंगे, बट आपका सिंस बच्चा 1-2 महीने का है, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होंगे, तो हम साइकिल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 months टिल योर साइकिल्स बिकम रेगुलर, आपकी ओवुलेशन स्टार्ट हो जाए. अगर आपके साइकिल्स तब इरेगुलर रहते हैं आफ्टर 6 to 7 months, प्लीज़ गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड स्कैन. TVS स्कैन करके देखेंगे कि ओवरीज में फिर से सिस्ट तो नहीं बन रही हैं. दो चांसेस वेरी लेस. नॉर्मली अगर आप ट्रीटमेंट के बाद आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो चांस काफ़ी कम होता है, अनलेस एंड अनटिल आप सडनली आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ओबेसिटी हो जाए और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसे मैंने कहा, एंड यू स्टार्ट ईटिंग फास्ट फूड वगैरह, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए.
अगर आप अपना ध्यान रखोगे, आप अपना वेट कंट्रोल में रखोगे, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं यूज़ करोगे, आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, न्यूट्रिशियस डाइट लोगे, आई एम श्योर यू विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगेन. Okay, my next patient is Bhagya. She is 28 weeks pregnant. Well, congratulations, Bhagya. Even I was diagnosed with polycystic ovaries and I didn't conceive for 4 years. After follicular studies, I conceived. Now I'm 6 months pregnant. Will this impact my baby? Well, congratulations सबसे पहले तो that you are pregnant even with polycystic ovaries and without any major intervention. Follicular studies के बाद ही आप pregnant होगी सी. So I don't think it so this is going to harm your child. Many a times जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ब्लड शुगर चांसेस बढ़ते हैं. लाइक फीमेल हैज़ अ टेंडेंसी टू गो इनटू GDM. तो हम शुगर्स इन लेडीज़ के, आई एम श्योर आपकी गायनिक आपके शुगर्स अच्छे से मॉनिटर कर रही होंगी. शी मस्ट बी डूइंग योर शी मस्ट हैव डन योर GCT. GCT इज़ टेस्ट वेयर इन वी गिव द लेडी 50 grams ऑफ ग्लूकोज और उसके 2 घंटे बाद हम शुगर टेस्ट करते हैं विच शुड बी लेस देन 140. नॉर्मल इन PCOD में हम GCT करते हैं. GCT में अगर हमारा शुगर 140 से ऊपर होता है वी गो फॉर प्रॉपर ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम 75 grams ऑफ ग्लूकोज देते हैं फीमेल को. And we take her blood sugar fasting, then 1 hour, then 2 hours, then 3 hours postprandial of taking that sugar. वो हम values देखते हैं. All those ladies who have polycystic ovaries, उनमें GCT अगर वो abnormal है तो ग्लूकोज टॉलरेंस GTT दोनों ही हम करके देखते हैं to evaluate their sugar. Normally इनको हम मेटफॉर्मिन पे रखते हैं ताकि बेबी इनको कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए. So I'm sure your gynec must have given you this. एंड आपके बच्चे पे अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल्ड हैं, आई एम श्योर आपके बच्चे पे कोई इसका असर नहीं होगा. ओके, अनदर क्वेरी इज कुमावत अनुराधा. नाउ अनुराधा इज 5 weeks pregnant. Well, congratulations. She is saying that I have PCOD but I have 2 months pregnancy. Any problem with PCOD in pregnancy? As I have told you, पहली क्वेरी का भी मैंने यही जवाब दिया था. अगर आपको PCOD है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी गायनी आपके शुगर्स बहुत अच्छे से मॉनिटर करेगी. She will take your blood sugar fasting PP or HbA1c which tells us the sugar status 6 weeks prior to the present date. अगर ये ठीक आता है सपोज आपका तो 28 weeks में हम करते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जो मैंने पहले बताया है कि 50 grams ग्लूकोज दे के 2 घंटे बाद शुगर लेते हैं. सपोज वो आपका 140 से ऊपर है तो हम प्रॉपर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे. स्टिल मेनी अ टाइम्स दिस इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट. मेनी अ टाइम्स जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो मेटफॉर्मिन पे PCOD के पेशेंट्स को दे टेल देम टू कंटिन्यू मेटफॉर्मिन सो दैट नो हार्म इज डन टू द बेबी. So you go to the gynec to whom you are taking consultation and ask her whether you need metformin, whether if she has not started you on metformin, whether you need metformin or does she wants to monitor your sugars regularly every 4 weeks. So that is the call your gynec will take, but I am telling you this is how we proceed about. Well, my next caller is now she is Priya Sharma. She is a mother of 3-month-old. Very good. Well, इनको शुरू से ही पीरियड्स टाइम ठीक से नहीं आता था, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है और ना के बराबर. 2 days ओनली डॉक्टर एंड PCOD बताया था. मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं. अब मेरे 3 months का बेबी है और अभी नेक्स्ट मंथ मेरे पीरियड टाइम आया था. पहले की तरह कम था, वेट भी बढ़ता जा रहा है, पिंपल्स भी हो रहे हैं. तो मुझे फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा PCOD का और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फिर से ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो इसका सॉल्यूशन बताइए. ओके, सो आपने बोला कि आपको PCOD का प्रॉब्लम शुरू से ही था, आपके पीरियड्स कम आते थे
और अब आप कंसीव कर गए हैं, पीरियड्स अभी भी कम आ रहे हैं। देखो, हो सकता है आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, ब्रेस्ट फीडिंग में पीरियड्स जनरली इरेगुलर होते हैं, इरेटिक होते हैं, कम होते हैं, और अगर 2 महीने बाद आते हैं तो हैवी होते हैं। अगर आपका दोबारा से वेट बढ़ रहा है और पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो गया, एक्ने इज अनदर सिम्टम ऑफ PCOD, यू हैव एक्ने ऑन द फेस एंड हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, देन यू मस्ट गेट योर अल्ट्रासाउंड डन। अगर अल्ट्रासाउंड इनकन्क्लूसिव होता है तो हम हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, हम LH-FSH रेशियो देखते हैं, हम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स देखते हैं, हम सीरम इंसुलिन लेवल्स देखते हैं। पर अगर आपके सिम्टम्स आने शुरू हो गए, अभी से यू बिकम वेरी विजिलेंट। अगर आप बेबी की वजह से या लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते हैं, हार्मोनल टेस्ट वगैरह नहीं करा सकते हैं, तो आप घर में अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दीजिए। आप घर में रह के अपना कुछ आधा 1 घंटा सुबह, आधा 1 घंटा शाम को, या घर के अंदर वॉक कीजिए, या कोई योगा कीजिए, या कोई एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, सो दैट आपका बॉडी का जो रेजिस्टेंस है इंसुलिन की वो धीरे धीरे कम हो। एक बार आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली 30-40% तक रिजॉल्व हो जाएगी। 3-4 महीने आप अपना एक टारगेट बना के चलिए कि मुझे 1 महीने में 2 किलो वेट कम करना है। अगर आप ये कहेंगे बाय द टाइम 3-4 मंथ्स में ये लॉकडाउन की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, हो सकता है आपका PCOD का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। अगर नहीं होता है देन यू प्लीज़ कंसल्ट योर लोकल गायनिक, गेट योर अल्ट्रासाउंड डन, गेट हार्मोनल प्रोफाइल डन एंड टेक सम start the treatment in concurrent with your gynec. My next query is from Chandni. She is trying to conceive. मेरा पीरियड्स 28 मई को आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया, और आज मैंने टेस्ट किया था, नेगेटिव आया, बट मुझे हल्की सी ब्राउन कलर की ब्लीडिंग हुई। आप मुझे बताइए कि ये ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है कैसे? इट कुड बी। अगर आपका मई को पीरियड आया और उसके बाद आपको नहीं आया और ब्राउन ब्लीडिंग हो रही है, मैनी टाइम्स क्या होता है कि स्ट्रिप में हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। ऐसे में हम कंक्लूसिव होता है हम ब्लड टेस्ट करें, बीटा HCG लेवल्स करें। बीटा HCG लेवल्स लेस देन 5 इज़ नॉन प्रेग्नेंट, मोर देन 5 आती है और हमें लगता है कि 100 से लेस है, तो शी कुड बी इन वेरी अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी ठीक है? तो हम 48 आवर्स के बाद रिपीट बीटा HCG कराते हैं। वो अगर डबल या ट्रिपल हो रही है दैट मीन्स हमारी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। सो आपको अगर 28 मई को पीरियड आया था, उसके बाद नहीं आया था, और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव था, इन दैट कंडीशन प्लीज़ गेट बीटा HCG लेवल्स डन, स्पेशली इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज पेशेंट्स में, क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपका पीरियड मिस हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो नेगेटिव है, तो आपको हम ज़रूर अपना बीटा HCG करना चाहिए। अगर आपका बीटा HCG लेस देन 5 है दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेग्नेंट, बट सपोज बीटा HCG इज़ हाई, देन यू रिपीट बीटा HCG आफ्टर 48 आवर्स। मे बी हमें तीसरा बीटा HCG उसके 48 आवर्स के बाद करना पड़ेगा टू सी दैट बीटा HCG लेवल्स आर डबलिंग एंड ट्रिपलिंग इन ईच वैल्यू। अगर ऐसा होता है तो प्रेगनेंसी होती है। अब आपके केस में हमें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड विल टेल यू कि आपकी एंडोमेट्रियम कितना है, इम्प्लांटेशन हुआ या नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे लग रहा है इट कुड बी और केमिकल प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी हुई थी, वो केमिकल प्रेगनेंसी थी एंड इट कुड हैव गॉट इनटू अबॉर्शन। तो जस्ट गेट एन अल्ट्रासाउंड डन एंड सी टू इट। My another patient is Manisha Sharma. Now Manisha is again PCOD patient, 24 years old, और शादी के 2.5 साल हो गए हैं एंड मेरे पीरियड्स भी बहुत लेट आते हैं, कंसीव करने की कोशिश करते हैं। वेल मनीषा जी, आपके लिए आई वुड से कि आप गो टू योर गायनिक इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव एंड योर पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अब हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, मैं एंड में आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी पॉलीसिस्टिक ओवरीज का। इन जनरल हमें क्या करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज की ट्रीटमेंट में, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव गो टू योर गायनिक, शी विल इवेल्युएट यू प्रॉपरली, शी मे टेक यू अप फॉर लेप्रोस्कोपी। अगर काफ़ी पॉलीसिस्ट्स हैं ओवरीज में, वी डू ओवेरियन ड्रिलिंग,
So your best chance is go to the local gynae. You can come to us. We are a gynae laparoscopic surgeon. आपकी लेप्रोस्कोपी होनी चाहिए. लेप्रोस्कोपी में हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी होनी चाहिए. हिस्ट्रोस्कोपी में हम यूट्रस के अंदर देखते हैं. लेप्रोस्कोपी में हम यूट्रस के बाहर और ओवरीज को देखते हैं. अगर बड़ी बड़ी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो हम ओवेरियन ड्रिलिंग करके मैनुअली ईच एंड एवरी सिस्ट रप्चर करते हैं सो दैट लेडी स्टार्ट्स ओव्यूलेटिंग अगेन. सो अगर आपके 2.5 साल हो गए हैं शादी को एंड यू हैव नॉट become pregnant and you are a case of polycystic ovaries, then you require laparoscopic hysteroscopy with ovarian drilling. साथ में हम क्रोमोपर्ट्यूबेशन करके देखते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं. So this is the what you have to do. My next query is Sahu, Geetu Sahu. Again इनका यही है कि she is trying to conceive. She has PCOD. मैरिज को 3 साल हो गए हैं. कंसीव नहीं हो रहा है. ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला. डाइट एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ. वेट लॉस भी किया है. हाइट 4 फीट 11 इंचेस है. वेट 56 kgs है. और पीरियड्स भी रेगुलर आने लगे हैं मैम कुछ मंथ से. तो क्या मेरा ओवुलेशन होता है और मैं रेगुलर पीरियड्स आने से इजीली कंसीव कर पाऊँगी? वेल आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशंस गीतू दैट यू हैव लॉस्ट योर वेट. वेरी हाफ द बैटल इज़ वॉन अगर आपने वेट लॉस कर लिया है और आपका पीरियड्स टाइम से आने लगे हैं. बिलीव मी, वंस यू हैव लॉस्ट द वेट एंड योर पीरियड्स स्टार्ट कमिंग, दैट मीन्स आपकी ओवुलेशन शुरू हो गया. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. यू विल कंसीव. गिव योर सेल्फ 6 months. 6 months में अगर एंड येस गेट योर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस ऑल्सो डन. क्या होता है कि हम फीमेल में ही कंसनट्रेट करते हैं पीसीओडी एंड वी फॉरगेट द मेल पार्टनर. सो मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है. गेट द सीमेन एनालिसिस डन ऑफ द मेल पार्टनर. आप अपने आप को 6 महीने का टाइम दो. अगर देर इज सम प्रॉब्लम इन द सीमेन दैट ही विल गेट हिज ट्रीटमेंट फ्रॉम द यूरोलॉजिस्ट. आपका आई एम श्योर पीरियड्स टाइम से आ रहे हैं, वेट लूज हुआ, आपका ओवुलेशन हो रहा है. 6 महीने में अगर आप कंसीव नहीं करते हैं, जस्ट गिव योर सेल्फ 6 months, नॉट मोर देन दैट. Then you consult a gynecologist, and as I've said earlier, she may take you up for laparoscopy, hysteroscopy. Again another राधिका सराफ ने बोला है कि मुझे PCOD है, कंसीव नहीं हो रहा है, मेरा वेट ज़्यादा नहीं है. ट्रीटमेंट जस्ट 1 second. तो होम रेमेडी ही फ़िलहाल मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं है. तो बेसिकली हाँ राधिका, ट्रीटमेंट ले रही हूँ और डाइट में भी हूँ. इन्होंने बोला है कि मेरे को PCOD है, मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, ट्रीटमेंट ले रही हैं, डाइट में भी हूँ. आई थिंक गिव योर सेल्फ सम टाइम. आपने अपनी एज नहीं बताई मेरे को. अगर आप मुझे अपनी एज बताते राधिका तो मे बी मैं आपको थोड़ा और गाइड कर पाती. इफ़ यू आर लेस देन 30 years ऑफ एज और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपका वेट कम हो रहा है और ट्रीटमेंट चल रही है, तो आई एम श्योर यू विल कंसीव. बट सपोज गिव योर सेल्फ ओनली 1.5 year. अगर आप 1 साल के ट्रीटमेंट में आपको रिजल्ट नहीं आता है, कंसल्ट आवर गायनिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन. यू कैन कम टू अस. वी डू लेप्रोस्कोपी सर्जरीज और आपका अंदर से पूरा टेस्ट किया जाएगा. ट्यूब्स की पेटेंसी देखी जाएगी. हिस्ट्रोस्कोपी करके यूट्रस क्लीन किया जाता है और अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो ओवेरियन ड्रिलिंग की जाएगी. My another query is again from Gudiya Mehta. She is also trying to conceive. Age 27 है, शादी को 7 महीने हो गए हैं, तब से बेबी कंसीव की ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा. रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, बस लो टमी में पेन होता है. नॉर्मली हम शादी के 1 साल तक वेट करते हैं. वी डोंट स्टार्ट द ट्रीटमेंट टिल 1 year आफ्टर द मैरिज. सो अगर 1 साल तक आप ट्राई कीजिए. अगर आपके नहीं होता है then you consult a doctor. 7 months is too early a time to consult a doctor. Then I have this Subhiya Das, Subhi Fashion. इन्होंने भी trying to conceive. I have polycystic ovaries, irregular periods, got married 2.5 years ago, no baby. My periods comes for 2 days only of 28 days cycle. What can I do? Well, you have not told me whether you are taking any treatment for polycystic ovaries. अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं polycystic ovaries का और 2.5 years हो गए हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, then you need a laparoscopy.
ऑल द मोर रीज़न कि आप लेप्रोस्कोपी के सर्जन, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास जाइए. शी विल डू योर लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एंड फाइंड आउट द कॉज. हियर आई वुड लाइक टू से कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमें खाली फीमेल पे नहीं कंसंट्रेट करना, मेल पार्टनर पे कंसंट्रेट भी करना होता है. आदमियों की तो एक ही जांच होती है, सीमेन एनालिसिस. तो जब हम फीमेल के टेस्ट कर रहे होते हैं, जस्ट टेल योर पार्टनर टू गेट सीमेन analysis done, and normally it should be done after 3 days of abstinence. So after 3 days of abstinence, get the semen analysis done. उसमें कोई दिक्कत आती है तो simultaneously both the partners can be worked up, both husband and wife, so we get very good results. So whenever we have PCOD or infertility treatment, it should be done in a setup which has both a gynecologist and urologist. So दोनों in tandem treatment करते हैं, we get very good results. So friends, this is all I wanted to discuss about polycystic ovaries. I hope मैंने कुछ डाउट्स आप लोगों के क्लियर करे हैं. जैसा मैंने बोला है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की 2 मैनेजमेंट होती है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट. If you are not very keen on pregnancy and trying to conceive, go for medical management. But the mainstay, the crux of the treatment is weight loss and proper diet, nutritious diet. अगर आप weight loss नहीं करेंगे और आप अपना sedentary lifestyle रखेंगे, आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, and you will eat all the junk, fast food, कितना भी हम ट्रीटमेंट कर लें आपका it will, polycystic ovaries नहीं आपकी रहेंगी. सेकेंड, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है. जैसे अ लेडी वांट्स टू कंसीव, शादी को 2-3 साल हो गए हैं एंड शी वांट्स टू कंसीव. इन दीज केसेस, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट 1-1.5 साल चलता है, वी डोंट वांट टू वेट फॉर सो लॉन्ग, नीदर द पेशेंट वांट्स टू वेट फॉर सो लॉन्ग. सो दिस इज़ द आइडियल कैंडिडेट फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करके यूट्रस क्लीन करते हैं अंदर से, ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, ट्यूबल पेटेंसी चेक करते हैं. वंस वी डू ओवेरियल ड्रिलिंग, विद इन 3 months आवर पेशेंट्स बिकम प्रेग्नेंट. So thank you very much. Hope to see you again with the next very interesting topic. Goodbye and take care.